Hello dear students, this is the fifth lecture for class 11 physics related to first chapter, that is units and measurement. And in this lecture today we will discuss about the dimensional formula and what is the concept of dimensions and dimensional formula and what is the importance of dimensional equations. Today we will discuss about the dimensions, and in this lecture we will find out some dimensional formula for some physical basic quantity and derived quantity also. Let's see what is the concept of dimensional formula. Here this is dimensional analysis. Dimensional analysis. In dimensional analysis, the concept of dimensions. Dimensions concept very easy. जब भी डायमेंशंस की बात आए तो सिंपल सा सेंस डेवलप होना चाहिए. The powers are you say that exponent. Powers are exponent में से किसी को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. The powers raised to the base unit of physical quantity. Basic unit, there are 7 fundamental basic quantity and there are 7 fundamental basic units, and when we just raise the power, it means power either 1 or 2 or 3, no matter, as the physical quantity requirement we will use the power. So the power raised to the fundamental physical quantity to represent the derived physical quantity. Suppose we have to represent what? Area. We have to represent area. Then area means what? Length into breadth. Length into breadth. And length into breadth, that means length representing by L and breadth also representing by L. Then L here power 1 and here 1, it means nothing given, then always taking 1. जब भी कुछ दिया नहीं रहता हम तो क्या लेते हैं? 1 लेते हैं. And then 1 here 1 exponent or power rules. Suppose this is A and this is A, so A power m into a power n equal to a power m plus n. सेम बेस पे पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट हियर, l and l सेम बेस, then power will be added. So l power 1 plus 1, it is equal to l square. Area dimension, that is l square. Very simple concept. Means whenever the powers raising to represent the physical quantity, and which type of physical quantity? Derived physical quantity, and in the terms of fundamental or basic units. जब भी फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स पे हम लोग क्या करते हैं? पावर अगर रेज करते हैं तो ये जो पावर रेजिंग से जो रिप्रेजेंटेशन आता है, इसी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहते हैं क्या? डायमेंशंस. क्या कहते हैं? डायमेंशंस. तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है, देखिए. द पावर रेज टू रिप्रेजेंट द derived unit are fundamental units.
फंडामेंटल यूनिट्स पे जो हम पावर क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस। वेरी सिंपल है। यहाँ एरिया कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया इस तरह से, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम एज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, and length, breadth, height all are representing by L 3 times, then 1 plus 1 plus 1 means what, that is L power 3. This is the dimensions of volume, and there are so many physical quantity whose dimension we will just find out. Just try to understand what about the concept of dimension. Dimensions means the raising of power to the units of base quantity, to represent what, derived quantity. Here volume and area are derived physical quantity, and their units whenever we use what, in the terms of length, that is L power 2, and here volume L power 3. So after all dimensions concept will be clear. Dimension में किसी कोई डाउट नहीं होगा. Then after dimensions, the next one is dimensional formula. Dimensional formula, very simple concept. Just note down this one. Dimensional formula. इसमें डाउट्स बहुत सारे लोगों को रहता है कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है. तो सारे टर्म्स के डायमेंशंस मीन्स जो हम लोग पावर को रेज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देयर रिप्रेजेंटेशन, लेंथ representing by L, mass representing by M, and time representing by capital T. Whenever second is square, then time power 2. Power 2 means what? That is the raising of power 2 times. So next one, the dimensional formula. The expression which is used to represent the expression which is used to represent a physical quantity, the expression which is used to represent the physical quantity in the terms of basic quantity. Just like speed, suppose you have to write down the dimensional formula of speed, that is distance upon time or displacement upon time, both having same concept. So distance representing by L and time T, we say that L T minus 1. This is the concept of speed dimensional formula. And with the help of speed we can find out the acceleration, speed upon time, L T minus 1 upon T. when इस T को हम लोग ऊपर ले जाएंगे जिसका पावर क्या हो जाएगा, -1. ऑलरेडी -1 पहले से ही है, तो -1 -2, इसमें becomes what, L T minus 2. This is the dimensional formula for acceleration. क्लियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा. क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बेसिक क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही बेसिक क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन ही क्या है,
जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वही एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। वेरी सिंपल, डायमेंशनल फार्मूला मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। So if any doubt further then you can ask, but I think when you just listen everything then there will be no doubt. एक बार केवल ध्यान सुन लोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सिंपल है। इसी तरह का फोर्स का निकालना हो तो फोर्स का होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से, और एक्सेलरेशन का अभी बताया मैंने lt-2, ये किसका डायमेंशन फार्मूला होगा, mt-2, दैट इज डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स। अब इसके बाद बात आती है डायमेंशनल इक्वेशंस की। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला क्लियर है तो डायमेंशनल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। बस डायमेंशनल फार्मूला जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे फिजिकल क्वांटिटी से, वही क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल इक्वेशन जैसे मैंने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू, जब भी इक्वेशन आए तो इक्वेशन मतलब इक्वल सिंबल वहां प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो इक्वेशन है, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर इक्वल सिंबल नहीं है तो एक्सप्रेशन है, इक्वल सिंबल जहां भी आ गया तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। यहाँ डायमेंशनल इक्वेशन है मींस डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वेट। स्पीड इक्वल टू lt-1 when we equate the physical quantity to its dimension formula. It is the equation, it is the equation between dimensional formula and physical quantity. Dimensional formula and physical quantity. बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जो डायमेंशनल फार्मूला है और फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं इक्वल सिंबल से। यही कॉन्सेप्ट किसका है, डायमेंशनल इक्वेशन का। इसको डायमेंशनल फार्मूला भी शॉर्टकट में कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन सिंबल है, डायमेंशनल इक्वेशन कह देंगे। तो इसी तरह अगर निकालना हो मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास कॉन्सेप्ट m एंड वेलोसिटी lt-1। मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों मोस्टली यूज होंगे डायमेंशनल फार्मूला में। रेयर केस में कहीं कहीं मेजरमेंट आ सकता है टेम्परेचर का, तो उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेयर केस में का बार ऐसा कुछ होगा कि नहीं, इसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, वो केमिस्ट्री का टर्म है बट स्मॉल ये मुश्किल यूज किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डायमेंशन फार्मूला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला mlt-1। इस तरह से अगर निकालना हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला पहले लिखेंगे, न्यूटन्स फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। हमको निकालना है कैपिटल G का, तो G को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, उसके बाद F इंटू r² अपॉन m1 m2। हमको फोर्स का भी निकाले थे फार्मूला, डायमेंशन m_L_T-2, m_L_T-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का क्या होगा, L⁻², क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की पावर 2 है, इसलिए
l पावर 2 है, यहाँ m1 m2 दोनों का मास होगा, तो m इंटू m, एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पावर -1, m पावर -1, l पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं तो 1 है, तो l पावर क्या हो जाएगा 3 एंड t पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m पावर -1 एंड l पावर 3 एंड t पावर -2। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका फार्मूला याद है प्रीवियस क्लास से तो उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। बाकी क्लास 11th स्टैंडर्ड में नियरली 300 to 400 फिजिकल क्वांटिटी होंगी डिराइव, जिनका डायमेंशन फार्मूला जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम लोग वो क्लियर होता जाएगा। अभी डायमेंशन फार्मूला ज़्यादा लर्न करने के ना कोई मतलब नहीं है उसको, कि नहीं अगर उसको लर्न कर लिया जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसका डायमेंशन फार्मूला इजी हो जाएगा, निकाल लेंगे। हाँ 10, 15, 20 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला क्लास 9, 10 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसकी यूनिट्स के बारे में, तो उसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल लेंगे। डायमेंशन फार्मूला से हम कह सकते हैं कि यूनिट्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फोर्स है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और मीटर लेंथ को, पर सेकेंड स्क्वायर में स्क्वायर टाइम पावर -2 सेम है। अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद है तो हम लोग डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए डायमेंशन फार्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप लर्न करने की कोशिश करिए, और लर्न करने का मतलब कि उसको 2-3 बार लिखिए, है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इजी वे है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस केवल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फार्मूला और डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इस पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आएगा इससे रिलेटेड तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेन एप्लीकेशंस हैं, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खास करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पूछे जाते हैं और एग्जाम भी पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। So that's all for today. Good day.